Okay, so we are done with this semiconductor nanocrystals, and now we will make an effort to understand some of the properties of plasmonic nanomaterials. So these are basically the metal nanoparticles that we are talking about, and the word plasmon or plasma-like particle that is originating from this the basic structure that a metal has. So due to this, first thing is why it is exciting to study these nanomaterials. I always give emphasis on first to understand why we are doing this, why we are studying at all about this. Is it so important? Yes, it is. So if you look at it, just I think in the introductory class on nanotechnology and nanoscience, I told you, I have already shown you why they are interesting, why this gold, silver. So first thing is that the bright colors is so attracting, so fascinating about it. So ये जो आप देख रहे हैं एक बल्क गोल्ड है जो कि पीला हल्का सा वो जो येलो होता है जिसको आप टिपिकली गोल्डन येलो एक कलर ही हो गया है अब कह देना। सो वो आप देखते हैं कि गोल्ड के किसी भी ऑर्नामेंट में गोल्ड के एक किसी भी जो एक बड़ा सा पीस होगा उसमें रहता है। बट एज सुन एज यू रिड्यूस द साइज टू फ्यू बिलो 100 nanometers or something around that, you'll find that you will get a variety of colors can be seen. And some of you have also witnessed this in the lab, performed some experiments and already know about it. So it is this all these things that or it is a optical property that we are talking about, a fascinating optical property that is एब्जॉर्प्शन बेस्ड फ्लोरेसेंस। अभी तो हमने जो सेमीकंडक्टर में बात की थी, मोस्टली जो इंटरेस्टिंग बात थी उसमें फ्लोरेसेंस से रिलेटेड थी। We were talking about fluorescence, the emission of light from the nanomaterials. Now here what we are talking about is something that relates to the absorption of light, and it is you get a wide variety of colors and some other things that comes up with along with that. So this is a very the property that is responsible for these colors that you see. The colors origin of colors lies in this phenomena called surface plasmon resonance. So to understand this, you need to visualize what is the structure of a metal. It is this is your metallic structure. How do you visualize metals? सबसे पहले तो ये समझना, मेटेलिक बॉन्ड आपको समझना पड़ेगा, है ना। मेटेलिक सॉलिड क्या होता है इसमें, यू हैव ये जो फिक्स्ड लैटिस साइट्स जो देख रहे हो वहां पे क्या है, दीज आर मेटल केटायंस। सो मेटल केटायंस ऑक्युपाई अ फिक्स्ड लैटिस साइट्स। सो दिस 3-dimensional network of metal cations is there, and this is the lattice, and this entire lattice is submerged in sea of electrons। ये जो आप देख रहे हो जो मूविंग डॉट 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 जो रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स है, और वो जो रुका हुआ है स्टैटिक है, that is metal cations। so this is the view of a typical metal। एक सोडियम मेटल होगा तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम है वो भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, और इस तरह से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पूरा उसका अट्रैक्शन विद दिस मेटल केटायंस, फिक्स्ड मेटल केटायन जो है उसके साथ होगा, और उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ होगी दैट इज द metallic bond that so metal this is known to be strong, good strong bond, one of the strong bonds। so you have iron, so लेकिन ये सॉफ्ट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन एटम कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, उस पर ये मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा।
ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना स्ट्रांग बन रहा है कि एक ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आप सोडियम की बात करेंगे, सोडियम का हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। अगर हमारे पास 1000 सोडियम एटम है तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इकट्ठा हो गए, ये हमारा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। उसमें अब ये सोडियम मेटल अपना जो लैटिस एक बीसीसी लैटिस होगा उस फॉर्मेट में सेट सेट करेगा, और दैट इज गोइंग टू सबमर्ज इन दैट सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर वो अट्रैक्शन बिटवीन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो मोबाइल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, ओके, उसमें उस समुद्र में वो जो इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है उसमें आपने उसको डुबा दिया है कैटायन लैटिस को। तो नेगेटिवली चार्ज्ड sea of electrons, positively charged cation lattice, there is likely to be an attraction, and so that's how it is solved. So पहले तो आपको यही समझना है मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। अब सोचिए कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा। अगर केटायन पे चार्ज ज्यादा होगा तब भी ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, होगा ना, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जरा सोचिए कि इलेक्ट्रॉन सोडियम की जगह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12, तो वो इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो अ मैग्नीशियम एटम gives out 2 electrons voluntarily, बहुत easily it will give up, and you will have and the C of electron will be now twice the density of electron. जो C of electron है और ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन होगा, है ना। तो इसका मतलब वो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, यस इट विल बी। सो ये यही चीज आपको समझने की कोशिश करनी है कि पहले जो पॉइंट है मेटेलिक बॉन्डिंग अगर आप क्लियरली समझ रहे हैं, सो दैट इज अ पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू, C of electron. So look at this. So if you are looking at group 1 metal, group 2 metal, do you understand this what I am saying? ये केटायन लैटिस है, इसमें हर एक सोडियम एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। मैग्नीशियम के पास आप जाते हैं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र बन गया। तो ये जो उसी वॉल्यूम में अगर एक छोटे से वॉल्यूम में इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और उस सो देयर विल बी बेटर इंटरेक्शन, अट्रैक्शन होगा। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो द अट्रैक्शन विद द केटायन लैटिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर। केटायन लैटिस में जो केटायन है उस पर भी चार्ज बढ़ गया है, 2+ है। सो फॉर बोथ द रीजंस यू कैन एक्सपेक्ट दिस बॉन्ड इन द ग्रुप 2 मेटल्स टू बी स्ट्रॉन्गर, है ना, the attraction between the sea of electron, and because of these two reasons you can expect it to be a strong interaction between the sea of electrons and the cation lattice, right? Increased electron density in the sea of electrons and increased charge on the cations which are in the occupying the fixed lattice sites, है ना, increased positive charge. And then they are also smaller. Third point, this when you lose one electron, the cation is smaller than its initial size of atom. दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जब लूज करता है तो और छोटा हो जाएगा। So you can expect it to be much stronger system. So ये विजुअलाइजेशन है। और ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है यही मैं आपको दिखा रहा था, ये घूमता फिरता इलेक्ट्रॉन इस तरह से, जो अभी मैं आपको ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, समुद्र सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसी को आपको समझना। मेटेलिक सॉलिड इज पॉजिटिव मेटल आयंस हेल्ड टुगेदर बाय सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। पूरा अंदर तक 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क में देखेंगे तो पूरा अंदर से बाहर तक उसमें इस तरह की सिचुएशन होगी। और ये जो है दिस इज delocalized electron, so you can expect this kind of bond. So अब इसमें बात यही आ गई कि कौन कितना सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में
ऐड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, कितनी आसानी से लूज करेगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग ये इंटरेक्शन होगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड फिक्स्ड कैटायन लैटिस। सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे कि अब आप 3D सीरीज में चले आइए, तो there is also beyond the contribution in goes beyond two electrons. Now you have more than d electrons can also participate in this sea of electrons. So in the early part of this, so first half of the d series, you'll find that d electrons can also easily participate in making this sea of electrons. So the interaction is going to be even better, and that is reflected in the properties. You can see the metals, the sodium is so soft, the bonding is not as strong, you can cut it with knife, ठीक है ना। सोडियम मेटल को आप चाकू से काट सकते हैं, लेकिन आप आयरन को नहीं काट सकते, ठीक है। सो द पार्टिसिपेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन सी द डिफरेंस। सो ये सब चीज़ें पहले समझ में आनी चाहिए, उसके बाद हम इसको फर्दर अंडरस्टैंडिंग, मतलब सो दिस इज आवर व्यू। Electrons are all around the cation lattice, okay, and its attraction with this is that the reason for the stability of the system and the strength of the object that we are talking about. मेटल आर नोन टू बी स्ट्रॉन्गर। जब हम जनरली मेटल की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग आयरन जैसी चीज़ की बात कर रहे हैं, बट हमने ये भी कहा आपको कि मेटेलिक बॉन्ड सॉफ्ट वीक भी हो सकता है, जैसे कि सोडियम में होता है। सोडियम में एक पर एटम एक इलेक्ट्रॉन सब डोनेट करते हैं और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं सीरीज में, मेटल्स को आप एनालाइज करते हैं, डी सीरीज में जब जाते हैं, 3D सीरीज, यू फाइंड दैट 5 डी इलेक्ट्रॉन में 5 एटम इलेक्ट्रॉन तक एक एटम दे सकता है उस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, ठीक है। सो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस एंड यू कैन इजीली सी इन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि फर्दर आप उसके बियॉन्ड जाते हैं, आयरन वायरन के बाद, तो फिर वो वीक पड़ता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है, तो फिर वो खींचेगा, डी को पार्टिसिपेट नहीं करने देगा आगे, ओके इजीली। सो यू कैन इजीली इमेजिन, अब आप 11th 12th BSc 3 साल, MSc 2 साल 5 साल बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं बोलूँ आपको बहुत कुछ समझ में आना चाहिए, राइट। But I'm just starting as if you don't know anything, and so if you have missed out something learning on the earlier BSc में कुछ छूट गया, कुछ इसमें नहीं समझ में आया होगा, तो अभी समझ लो, ठीक है। Okay, so this is the one thing that I'm talking about. Now imagine what will happen if electric field is applied. So you have you can visualize a crystal which has just a moment, if I can draw it, it will be better. So when light falls on the any object, what is going to happen? There will be what is light? Electromagnetic wave hai, electric field vector, magnetic field vector are perpendicular to each other. So let's imagine you have a crystal, or let me change the color first, start with sorry, let me just pointer options in color black. So let me just take it this way. So you have visualized the sea of electrons. So initially, when imagine you have a small nanoparticle, say 100 nanometer size का एक है particle, और metal का nanoparticle, और so you will have same visualization for that also. एक
तो इसमें आपको तो ये विजुअलाइजेशन है कि इसमें मेटल कैटायंस लेटेस है somewhere like this. तो अंदर और दिस मेटल कैटायन, ये मेटल कैटायंस है सॉरी, मतलब आप सोच सकते हैं इस तरह से। और ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम कह रहे हैं। So if I can make sea of electron with different color, then it would be like so let me make it like with red to distinguish. So now you can imagine that you have it is ये sea of electron, negative charge electron symmetrically है, electron cloud all around, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह लो, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो बड़ा सा इलेक्ट्रॉन का ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चारों ओर हैं। सो दिस इज द सिचुएशन दैट यू हैव इनिशियली मेटल एटम, मेटल नैनो पार्टिकल। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली मोबाइल, दे आर ऑलरेडी, हमने कहा कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही मूव कर रहे हैं रैंडमली, एक रैंडम डायरेक्शन में, ओवरऑल नो मूवमेंट इज देयर, मतलब सब लेफ्ट राइट दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ मूव कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, कभी लैटिस पॉइंट से टकरा जा रहे हैं। तो ये सब इवेंट होता रहता है। नाउ व्हेन यू so I am imagining a spherical nanoparticle first. So this is the imagination, electron cloud, and you have metal cations somewhere. Now when you apply a field, electric field is applied. Now when you apply electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? Electrons will move from one side to the other side and a dipole will be created. How? Let me do it. फिर से मैं ब्लैक वाला कलर लूंगा, इंक कलर। एंड कॉपी पे लेके बैठते हो कि सिर्फ सिनेमा की तरह बैठ जाते हो सब लोग? नहीं सर, बना रहे हैं। हाँ, जब हम बना के आपको दिखा रहे हैं तब तो वैसे करें, अगर हम सिर्फ पीपीटी चलाते हैं तो आप सिनेमा की तरह देखते हैं। जब हम बना रहे हैं तो ये रहेगा अभी, फिर चला जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में रह जाएगा। नहीं, रिकॉर्डिंग भेज देते हैं ना सर, उसमें तो सारा चीज रह जाता है। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है। तो फिर से हम उसी पिक्चर को विजुअल दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि हाँ, उसी तरह से मेटल कैटायंस को जस्ट हम ऐसे दिखा रहे हैं, एक प्लस प्लस प्लस। तो दिस इज माय मेटल कैटायंस पॉइंट्स, और बहुत सारा ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, जितना हुआ हुआ। सो आप ये सब बस आपके इमेजिनेशन पे है। अब क्या होगा? सपोज डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, वी हैव अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? नीचे की तरफ। तो ये जो रेड ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, स्फेरिकल, देयर वाज अ स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द मेटल कैटायंस लैटिस, राइट, जो आपको हमने ड्रॉ किया ऊपर। अब वो जो सर्कल था, वो दिख रहा था, उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन्स, so they will feel a force and all the electrons on that side would be now moving to the other side. They are more mobile, they are likely to go to this side. So what will happen? You will have
excess of electrons on one side and less electrons on the other side, right? So most of the electrons will be now, थोड़ा सा ड्राइंग उतना सिमेट्रिक नहीं है परफेक्शन के साथ, उप्स, कंट्रोल Z, अरे इसमें कंट्रोल Z नहीं होता है, ओहो सॉरी। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि नाउ अब आप इमेजिन कीजिए कि जब हमने ये किया, सो व्हाट विल हैपन, सो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल हैं, फोर्स तो दोनों पे लगेगा, मेटल के टाइम्स पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, लेकिन रिलेटिवली आप सोचिए कि उससे 2000 टाइम्स हल्का है, लगभग 1800 टू 2000 टाइम्स, 1/2000 टाइम, मतलब एक प्रोटॉन के वेट से इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। और वो जो मेटल की हम बात करें उसमें तो कई सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। सो वो रिलेटिवली आप देखेंगे उसका मोशन कुछ नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करके इधर चला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो इस पे फोर्स लगा। अगर सो ये सब चीजें आपको समझ में आती है कि नहीं? बेसिक चीज ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, a positive charge will move in this direction, a negative charge will move in this direction, opposite direction। इतना तो समझ में आता है ना? वही चीज आप इलेक्ट्रॉन्स भी तो नेगेटिवली चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाया गया है तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव करेगा ना? तो अकॉर्डिंगली व्हाट वी आर गोइंग टू ड्रॉ, वही हम कह रहे हैं कि आप ऐसा जो ये सिमेट्रिकल पैटर्न था, इसको अब हम ऐसा दिखाएंगे कि देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस साइड than the other side। Okay, so you can imagine कि सारा इलेक्ट्रॉन हमारा उधर जो दिखा रहे थे वो सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है। सो ये सब जो चीजें हो रही है, तो ऐसा जो कुछ होगा ये एक्चुअली बहुत ही छोटे स्पेस में हो रहा है। ये हम ड्राइंग की जो लिमिटेशन है उसमें हम ऐसा दिखा पा रहे हैं, ठीक है। सो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस फील्ड, और अगर ये ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर गया। सो वेयर इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज? हियर। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वुड बी समवेयर हियर। अगर हम देखें, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज वुड बी समवेयर हियर, राइट? So there is a dipole is created. We say that a dipole is created. Center of positive charge will be somewhere here, okay, located here। Center of initial, पहले वाले पिक्चर में जाइए, अनडिस्टर्ब्ड वाला, बिल्कुल आइसोलेटेड कंडीशन में। अगर आप सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अगर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का एक बड़े से शेल में, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो आप कैलकुलेट करेंगे स्फीयर में, दैट विल बी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन उसी में है, तो उसका भी सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा वहां पे। सो दोनों में कोई सेपरेशन नहीं है, मतलब देयर इज नो डाइपोल। बट हियर द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वुड बी, वन वुड बी हियर, ओके, एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर है, लगभग सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऊपर होगा, यहाँ कहीं पे होगा। So a net you can expect this is plus, this is center of negative charge, and so a dipole is created। ये उसके अंदर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ड्राइंग में दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा। So center of positive charge, so what is happening, a dipole, positive to negative, a dipole is created। When you apply electric field, a dipole is created। Now if you reverse the direction of electric field, if the direction of electric field is reversed, तब क्या होगा? तब ये इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में चला जाएगा। सो a dipole has been created over here। ये हमने कहा पॉजिटिव टू नेगेटिव,
और डाइपोल का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा. सो इस तरह से आप देखेंगे. फिर से अगर आप ड्राइंग करते हैं तो देन अगेन यू विल हैव दिस पॉजिटिवली चार्ज मेटल सेंटर्स, मेटल केटायन लैटिस. एक स्फेरिकल नैनो पार्टिकल में आप देख रहे हैं उसमें जो इस तरह का होगा. और जो इलेक्ट्रॉन्स जो चारों तरफ हैं, अब उस पर फोर्स लगेगा. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ in this direction. So for negative charge the direction will be opposite to this movement. Electric field जिस तरफ point कर रहा है उसके उल्टे direction में electrons move कर जाएंगे. So what will happen? You will have so you can draw this here. So this time the electrons would be सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करके दिखा रहे हैं. थोड़ा सा एग्जैजरेशन है लेकिन वो ज़रूरी है ना, अदरवाइज ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उस आइडिया को इलस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं. लगभग उसी साइज का दिखाएंगे जितना कि उधर हमने दिखाया. सो सारे इलेक्ट्रॉन्स लगभग इधर आ गए. सो इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया. जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसका इलेक्ट्रॉन अब इधर मूव कर गया. सो डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज नाउ दिस वे. So again the direction of dipole changes, right? So there is a dipole created. Center of negative charge is here and center of positive charge is here. So this dipole, so positive to negative, so this dipole overall जो आप देख रहे हैं, इमेजिन कीजिए उस डाइपोल को, डाइपोल का डायरेक्शन चेंज हो गया है. अब जब लाइट पड़ती है तो उसमें क्या होता है, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है. सो हर बार एक बार डायरेक्शन अप, एक बार डाउन, अप डाउन अप डाउन. सो ये क्या होगा, एक उसी के साथ साइनोसॉइडल ऑसिलेशन सेटअप हो जाएगा. और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है एक साथ ऊपर नीचे with respect to the metal cation lattice they will keep moving. Okay, and this oscillation, rapid oscillation, has a particular frequency. For हर मेटल के लिए, सोडियम, पोटेशियम, हर एक मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है जिसपे कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जो जितना है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे लाइट का चेंज कर रहा है डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे अप डाउन ऑसिलेट करता रहेगा उसी फ्रीक्वेंसी पे. सो देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी for depending on the nature of metals. Each metal has a characteristic frequency of oscillation of this electrons. So ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो कलेक्टिव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को प्लाज्मॉन कहा गया है. Plasmon word is originating from plasma like. ठीक है, plasmon is what it means, like plasma like situation. So plasma क्या होता है, जब आप किसी चीज को हीट करते हैं सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है. गैस को भी और हीट करते जाए तो क्या होगा, उसका जो एटम्स है, एटम्स सब छिटक जाएगा, न्यूक्लियस एक साथ इंटैक्ट रहेगा, इलेक्ट्रॉन अलग रहेगा. सो पॉजिटिव कोर्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, और वो सब एक फ्लूइड सिस्टम में. सो इलेक्ट्रॉन्स, सो एटम्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है. सो इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बियॉन्ड द गैसियस स्टेट. इफ यू रेज द टेम्परेचर टू वेरी हाई लाइक थाउजेंड्स ऑफ, मतलब 5000 6000 केल्विन ऐसा कुछ कर दें, उससे भी ज्यादा 10,000 केल्विन के आसपास, तब जाके ऐसी चीज स्टेट आता है. तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं. वो एब्सोल्यूट टर्म्स में प्लाज्मा है. यहाँ पे कि हम कह रहे हैं प्लाज्मा लाइक, प्लाज्मा जैसा ही कुछ यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको कोई मतलब नहीं, मेटल केटायन से उतना एटम का हिस्सा बन के नहीं है. ये जो एक इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हम मेटल लैटिस की बात कर रहे हैं उसमें भी वो किसी एटम का एक हिस्सा बन के नहीं है, उसका एक
ये अपने आप में अलग सब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स एक अलग समूह एक समूह की तरह बिहेव कर रहा है. एंड दैट्स व्हाई इट इज दिस कलेक्टिव जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मॉन. सो ये जो प्लाज्मॉन है ये, so there is a collective oscillation of collective movement of electrons under the influence of electric field. ठीक है, एक साथ इन फेज, आउट ऑफ फेज नहीं, सब एक साथ होते, सब बिना टकराए ऐसे एक साथ इधर से इधर मूव कर रहे हैं. सो this kind of oscillation is possible at a particular value of wavelength of light. लाइट के किसी वेवलेंथ पे एक ही. सो इसकी फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ये मैच जब आप करा देते हैं तब वो लाइट एब्जॉर्ब होगी. जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी एक मेटल में है उसके करस्पॉन्डिंग जब आप ये करेंगे, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट is electromagnetic radiation, EM wave, oscillating, you have oscillating electric field. ठीक है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ गए ना, वही तो हमने किया यहाँ पे कि लाइट पड़ रही है, एक बार अप डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार डाउन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो ये सब रैपिडली चेंज हो रहा है, उसी उसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है और वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे हो रहा है. और सो देयर इज अ डाइपोल, यू सी एन ऑसिलेटिंग डाइपोल जो उसी वेवलेंथ से उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी. तो हम इसमें वर्ड आ रहा है सरफेस प्लाज्मॉन. सो सरफेस टर्म इसलिए आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स तो थ्रू आउट द लैटिस है, ठीक है, अंदर बाहर सब जगह है, लेकिन लाइट जो जब सरफेस पे पड़ेगी वो अंदर तक नहीं जा पाती है, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक. ठीक है, सो ज्यादा डीप पेनेट्रेट नहीं करता है लाइट, लेकिन सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इससे अफेक्टेड होंगे. सारे इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस पे हैं दैट कैन बी अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट लाइट. ठीक है, जो रैपिडली ऑसिलेट कर रहा है, और वो सरफेस पे जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक साथ मूव करेंगे अंडर सर्टेन कंडीशंस, दैट इज सो दैट रेजोनेंट कंडीशन, हम उसको रेजोनेंस का मतलब हम कह रहे हैं कि दो चीजों को आप मैच करते हैं ना, एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसका वेवलेंथ उसके साथ मैच करना चाहिए, तभी जाके वो कुछ बात बनती है. और रेजोनेंस, जो पुराना कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का है वो आपके दिमाग में होगा. ठीक है, तो उसी तरह से हमें यहाँ भी सोच रहे हैं कि जैसे कि गोल्ड का है तो उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, हर एक 400 नैनोमीटर की लाइट डाले नहीं हुआ, 800 की डाले नहीं हुआ, लेकिन जब हम 520 नैनोमीटर का एक सपोज गोल्ड 100 नैनोमीटर स्फेरिकल नैनो पार्टिकल जब हम लाइट डालते हैं, तब जाके हम देखते हैं कि यस, नाउ वी आर सीइंग द रैपिड ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कलेक्टिव मैनर इन फेज, सब एक साथ एक फेज में मूव कर रहा है. और so what we are talking about is that so every metal has a characteristic frequency at which, so जो मैंने कहा वो ये for every metal there is characteristic frequency with which surface electrons can oscillate collectively इन फेज. ठीक है, एक साथ एक फेज में. ठीक है, जो ऑसिलेशन आपको पता है ना, जिस तरह से हो रहा है अप डाउन एक साथ. सो this frequency, if the frequency of incoming light, if the frequency of resonance, so 0.1, then
if the frequency of resonant light, sorry, if the frequency of incident light matches this the characteristic frequency जो पहले पॉइंट में हमने लिखा, then resonant absorption occurs. Strong resonance condition is met, and you can say condition for resonance is achieved, and light is absorbed very strongly. Strong absorption होता है बहुत. So ये जो होता है, so this phenomena of this is what you call as surface plasmon resonance. So एक एक टर्म का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए. सरफेस क्यों हम यूज कर रहे हैं, प्लाज्मॉन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, और रेजोनेंस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस जब हम कह रहे हैं, तो यस दे आर इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द क्रिस्टल, बट अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे इफेक्ट कोई नहीं पड़ रहा है. जो लाइट पड़ रही है वो सिर्फ सरफेस इलेक्ट्रॉन्स से पे इंसिडेंट है, उनको इफेक्ट करेगा. The light doesn't penetrate metal crystals beyond a few सेंटीमीटर, मतलब कुछ एक लेयर के बाद, एटॉमिक लेयर के बाद दूसरे एटॉमिक लेयर पे नहीं जाएगा. ठीक है. तो सरफेस पे जितने इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं पे असर होगा. नंबर 1, प्लाज्मॉन, प्लाज्मा लाइक सिचुएशन. सो इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ एन एटम. ठीक है. एटम की अपनी आइडेंटिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन पूरा अलग हो गया है, इसी एक समुद्र बना चुका है. ठीक है. और ये जो पूरा एक इलेक्ट्रॉन्स का जो समूह है, झुंड है, इसको हम प्लाज्मॉन कह रहे हैं. ठीक. जो इस तरह से, सो सरफेस प्लाज्मॉन, सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री है, पूरा फ्री मूव, तो सरफेस प्लाज्मॉन. एंड देन द रेजोनेंस. सो रेजोनेंस इज व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, हर एक डिपेंडिंग ऑन किसी मेटल में किस तरह का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कितना उसका क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, उन सब चीज़ों पे फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. और इसलिए हर एक मेटल में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे वो एक साथ एक समूह के जैसा बिहेव करेगा और ऑसिलेट करेगा. ठीक है. लाइट के पड़ने पे. सो वो जो कैरेक्टरिस्टिक अपनी फ्रीक्वेंसी है मेटल की, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की, जो सरफेस प्लाज्मॉन जिसको अब हम कह रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाती है कि इंसिडेंट लाइट से, तब स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस. ठीक है. और यही चीज आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की थी. आप देख सकते हैं ये क्या दिखाया गया है. यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाया गया. इनिशियली यू आर हैविंग नेगेटिव सिमेट्रिकल, अच्छा ये थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है, हाँ इसीलिए गड़बड़ हो रहा था यहाँ. सो यू हैव सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस. ये थोड़ा सा बनाया हुआ खुद का था, लेकिन वो थोड़ा सा इधर से छिटक गया है. सारा नेगेटिव चार्ज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड. एंड देन यू हैव मूवमेंट. ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो पर्पल बैंड से दिखाया गया है, ये पूरा एक तरफ आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन नीचे चला गया. और फिर दूसरे साइकिल में जब वही लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चला गया. देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है. सो इस तरह से जो है, देयर इज अ डाइपोल ऑसिलेशन दैट टेक्स प्लेस, एंड this phenomena which is induced by light
लाइट इंड्यूस्ड कोहेरेंट ऑसिलेशन, कोहेरेंट मतलब सब एक साथ एक फेज में, द कंडक्शन वन, दिस इज कॉल्ड सरफेस प्लाज्मा ऑन रेजोनेंस। अब आप ये कह सकते हैं कि सर वो तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा, ये सब। देखिए, अगर कोई दूसरे वेवलेंथ की लाइट डालेंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट भी करेगा, लेकिन ये जो कलेक्टिव मोशन है वो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अपना अपना मूव करेगा, कोई किसी से टकराएगा, इधर करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का। कोहेरेंट मोशन नहीं होगा। कोहेरेंट जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक फेज में एक साथ जो मूवमेंट हम कह रहे थे इस तरह का नहीं होगा, थोड़ा बहुत इधर से उधर होगा मूवमेंट, लेकिन कोहेरेंट ऑसिलेशन नहीं होगा। अगर हम कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो of course all the light, any electromagnetic wave will have electric field, and being, if electric field is there, electrons would be slightly affected, but it won't set them into coherent oscillation. ठीक, पॉइंट्स आर क्लियर? सो अब ये तो हाँ ये बता दिए। सो दिस रेजोनेंट इनकमिंग लाइट, सो रेजोनेंट एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है इसी को हम सरफेस प्लाज्मा ऑन रेजोनेंस से कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये रैपिड ऑसिलेशन का पूरा साइकिल दिखाया कि ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप डाउन करते हुए जा रहा है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ऐसे जा रहा है। और ये वही एक ही मेटल पार्टिकल, ये दूसरा मेटल नैनो पार्टिकल नहीं है, वही मेटल नैनो पार्टिकल है, उसी के सरफेस पे अलग अलग टाइम पे क्या क्या इवेंट हो रहा है वो दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर था, अब इधर से इधर शिफ्ट कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे। सो ये जो है, सो दिस इज अ डाइपोलर ऑसिलेशन। सो वी से दैट इट इज अ डाइपोलर ऑसिलेशन, or oscillation of dipole created due to the electric field जो हुआ in the metal nanoparticle, ये जो हो रहा है, and the phenomena, this is induced by light which is called surface plasma on resonance। तो जिस किसी भी नैनो पार्टिकल्स में ये प्रॉपर्टीज बहुत प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व की जाती है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज इन कलर सीधा आपको दिख जाता है, आंखों से दिख जाता है कि हाँ ये चेंज, ये बन गया नैनो पार्टिकल, एकदम कलर चेंज कर गया, मतलब है। नहीं तो जो कॉमन गोल्ड होता है जो येलो कलर का, कॉमन सिल्वर होता है वो तो बल्क सिल्वर है, दैट इज वाइट लस्टर होता है। सो ये जो चीज़ें हैं इसको हम सरफेस प्लाज्मा ऑन रेजोनेंस कहते हैं, और इसी का बहुत सारा वेरिएशन है जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसपे ये एसपीआर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। ओके, सो द फिनोमेना, ये सब बाकी चीज़ें जो लिखी हुई है तो आप खुद भी पढ़ लेंगे, यही चीज़ मैंने आपको समझा दिया है जो अभी पिछले 2 स्लाइड में जो मैंने सब कहा है वो सब यही चीज़ें यहाँ पे। द प्रोसेस इज रेजोनेंट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट and that is termed as surface plasma. Okay, so that is something that done. I have already told you, explained to you through that. So this collective oscillation of electrons, conduction electrons in metal when electrons are disturbed from their equilibrium positions. Equilibrium position क्या है? सारा symmetrical, अगर spherical nano particle है तो उस पे इलेक्ट्रॉन्स का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद इम्बैलेंस क्रिएट होगा, आप जब जैसे डिस्टर्ब एक वेव आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होगा, और ये जो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दैट मेक्स देम ऑसिलेट कोहेरेंटली। हर जगह कोहेरेंट एक वर्ड आ जा रहा है, कोहेरेंट मतलब इन फेज, ठीक है, आउट ऑफ फेज नहीं। वो ऑसिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि वो इधर उधर सब एक इलेक्ट्रॉन अलग जा रहा है तीसरा अलग, तो वो नहीं, ऑसिलेशन सबका एक साथ हो रहा है। एक जैसे कि ट्रूप्स मार्च करते हैं तो देखते हैं कितना, दैट इज कोहेरेंट मूवमेंट। व्हेन यू सी द मार्च पास्ट ऑफ अ सोल्जर्स, ओके, द फोर्सेस, दैट इज कोहेरेंट मूवमेंट। सो अ मूवमेंट ऑफ दैट काइंड यू कैन इमेजिन, दैट इज कोहेरेंट ऑसिलेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। और रैंडमली जो हम भीड़ में शहर में कहीं पे दुकान मार्केट में जाते हैं, सबका रैंडम मूवमेंट हो रहा है, लेकिन दैट इज नॉट अ कोहेरेंट मूवमेंट,
ठीक है, तो कोहेरेंट वर्ड को पकड़िए, ठीक, इसको इमेजिन कीजिए तो आपको फिर ये सब समझ में। सो किसी भी बल्क मेटल में, सपोज इनफाइनाइट क्रिस्टल लैटिस ऑफ अ मेटल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जो हम कहें ना कि कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी एक होती है, हर एक मेटल में होती है। सो ओमेगा पी इज गिवन बाय दिस एन ई स्क्वायर बाय, ये एप्सिलॉन नॉट है, दैट इज द वैक्यूम इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई। सो नंबर डेंसिटी, कितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम n से डिनोट हमने किया है। E is the charge of electron, that you already know. Me is the effective mass, ठीक है। तो इस तरह से हम हर मेटल में एक SPR फ्रीक्वेंसी, सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस को अब शॉर्ट में हम SPR कहेंगे, SPR फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। और वो SPR फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स अलग अलग होगी डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आपको अब पता चल गया, इफेक्टिव मास पे डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज, सो हम ये कह रहे हैं कि इवन इन द केस ऑफ अ बल्क मेटल you have a SPR frequency denoted by this formula, and it depends on the number density of electrons, ठीक है, one, it also, so it is directly proportional to electron density। so अगर electron density ज़्यादा है तो ओमेगा पी प्लाज्मोन फ्रीक्वेंसी हाई होगी, है ना, फ्रीक्वेंसी विल बी on the higher side, higher the number of electrons, higher will the frequency, one, it is inversely proportional to the effective mass of the electron। so effective mass जैसे कम ज़्यादा हो सकता है, इफेक्टिव मास कैन कीप वेरिंग, इट इज़ अ वेरिएबल थिंग। ये बैंड थ्योरी में ये सब मैंने बताया था जब आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ाया था, तो आप लोगों को इफेक्टिव मास भी बताया था। सो इफेक्टिव मास इज समथिंग दैट इज फॉर अ बाउंड इलेक्ट्रॉन, उसका जो बिहेवियर होगा वो बिल्कुल अलग होगा, एंड as compared to a free electron at rest। so you apply the same force, the acceleration produced will be different, और उसकी वजह से जो आपको लगता है कि अरे ये तो हल्का हो गया, ये भारी हो गया, apparent change in the mass, वो इफेक्टिव मास से डिनोट करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव मास के लिए हम, अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर से एक बार एक डिस्कशन पूरा का पूरा इफेक्टिव मास पे रख सकते हैं, पर देखिए अभी हम हाँ, so let's be focused on, so these are the factors that will affect। so अभी का डिस्कशन हम इस पे नैनो मटेरियल्स पे फोकस रखते हैं। so what is, it's the electron density is crucial, one, it is, and so you can expect frequency to be high or low depending on these two factors, जो बहुत clearly दिख रहा है, effective mass। but what is most of the metals that you calculate, जब आप calculate करते हैं तो most of the metals, in most metals this UV region में भी फार UV और मतलब बहुत ही अल्ट्रावायलेट साइड में रहता है, जैसे कि सोडियम मेटल, उसमें भी प्लाज्मोन फ्रीक्वेंसी है लेकिन वो UV साइड में है। एल्यूमिनियम, इट इज अगेन इन द अल्ट्रावायलेट साइड, एंड सो एंड सच मेटल्स, आप एक प्योर मेटल का नैनो पार्टिकल बनाएंगे भी तो वो काफ़ी रिएक्टिव है, अनस्टेबल होगा, सोडियम, एल्यूमिनियम, और इसलिए वो इतना यूजफुल नहीं है। और we do not usually say that they are plasmonic nanoparticles because they are not stable at room temperature when you make such nanoparticles, and their plasmonic nanoparticle is something that remains that is sufficiently stable at room temperature under ordinary conditions। so copper, जो coinage metals हैं, coinage metals समझ रहे हो, जिससे coins बनता है, पुराने जमाने में सिक्के बनाए जाते थे सिल्वर के, गोल्ड से, कॉपर से। so these are coinage metals, and all of these coinage metals, the noble ones, और नोबल के आसपास जो हैं noble metal, coinage metals, they have plasmon frequency which lies in the visible region। और यही इसी कारण से हम लोग
जो ज़्यादा आप देखेंगे फोकस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, द रिसर्च सिल्वर और गोल्ड पे काफ़ी फोकस रहा है। प्लाज्मॉन रिलेटेड जितने भी काम हुए हैं सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस के, because they are now in control, they are sufficiently stable, you can, and from starting from visible you can tune it, आप उसको बदल सकते हैं प्लाज्मॉन फ्रीक्वेंसी को। थोड़ा सा और भी फैक्टर्स हैं जो अभी हमने बताया नहीं, अभी और भी चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करेगी। सो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हर एक मेटल में एक तो है कि, तो फिर ये भी सवाल आना चाहिए कि सर आपने तो बल्क मेटल में लिखा है, उसमें प्लाज्मॉन फ्रीक्वेंसी है, तो गोल्ड में प्लाज्मॉन फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं दिखती? हाँ, ये थियोरेटिकली प्रेडिक्टेड है कि गोल्ड में भी एक सरफेस प्लाज्मॉन होगा, बल्क गोल्ड में, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है वो कलर। वो बिकॉज ऑफ दैट देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स विच काउंटर, विच इन अ बल्क क्रिस्टल, वो सब जो उसको डिस्टर्ब करेंगी उस ऑसिलेशन को, वैसी भी चीज़ें होती हैं कुछ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन फोनोन स्कैटरिंग, मतलब लैटिस इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो लैटिस पॉइंट से टकरा जाना, उसका वो लैटिस पॉइंट्स का जो द कलेक्ट जो ऑसिलेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स है, दैट लैटिस वाइब्रेशन, वन क्वांटा ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड फोनॉन, राइट? फोनॉन। सो इलेक्ट्रॉन फोनॉन स्कैटरिंग, उससे टकरा गया, इधर उधर छिटक जाएगा, ये मेजर इवेंट है। तो एक बड़े क्रिस्टल में वो इवेंट बहुत ज़्यादा होता है, प्रोमिनेंट होता है, और इस वजह से वो जो कोहेरेंट ऑसिलेशन जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाता है। ऑल्दो थियोरेटिकली हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इतने पे होना चाहिए, नहीं हो पाता है, और इसलिए आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें बल्क एक मेटल में आप नहीं देख पाते हैं, कॉमन आंखों को नहीं दिखेगा इस तरह से। लेकिन जैसे ही हम छोटा करते हैं साइज को 100 नैनोमीटर से, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ये जो स्कैटरिंग मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ी चीज, ये डिसरप्टिव चीज है इसके लिए, ये कोहेरेंट ऑसिलेशन को नहीं होने देगा। तो मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं दिखा, तो मीन फ्री पाथ क्या होता है जानते हैं? व्हाट इज मीन फ्री पाथ? एक मिनट, अभी मैं आपको बताता हूँ, आधा अधूरा कुछ नहीं बताऊंगा। एक मिनट, मीन फ्री पाथ मैंने कहाँ पे बताया है? मेटल नैनो पार्टिकल्स, बैंड थ्योरी, यस। अभी अगर सेकेंड सेमेस्टर में जो बताए हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो मीन फ्री पाथ भी, एक मिनट, हाउ फास्ट इलेक्ट्रॉन्स, अभी जो बैंड थ्योरी मैंने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया है तो उसमें मीन फ्री पाथ भी बताया। तो मीन फ्री पाथ में आपको कहाँ गया, यस, मीन फ्री पाथ किसको कहते हैं? ये देखिए, ये लैटिस पॉइंट्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रेवल कर रहा है थ्रू द क्रिस्टल, एंड वाइल ट्रेवलिंग इट विल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटिंग, और जैसे धड़ से आगे जाएगा जाके टकराएगा, बूम। ये लैटिस पॉइंट है, वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह पे, है ना, लैटिस पॉइंट्स द एटम्स ऑफ द, सो मेटल कैटायंस जो वाइब्रेट करे उसके साथ टकराएगा, ठाक, तो इधर छिटक जाएगा, स्कैटरिंग होगी दिस। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यूसली अप्लाई अगर करते रहते हैं तो फिर से एक्सेलरेशन होगा, फिर दूसरे पे टकराएगा, और इस तरह से ये एक्सेलरेशन डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन, स्कैटरिंग, और ये सब इवेंट बहुत फास्ट प्रोसेस होता रहता है। तो दो स्कैटरिंग इवेंट के बीच में जो एक डिस्टेंस है, दो any two scattering on an average, that is between two scattering, what is the length that an electron travels, that is called mean free path। और ये जो मीन फ्री पाथ है ये अराउंड 25 नैनोमीटर, ये कॉपर के लिए कैलकुलेटेड है, जैसे कॉपर के लिए 40 नैनोमीटर्स है, ठीक है। इसी तरह से गोल्ड के लिए करेंगे अराउंड 50 नैनोमीटर्स आएगा। सो मीन फ्री पाथ इन केस ऑफ गोल्ड, so mean free path in case of gold for gold
will be around 50 nanometer. Copper के लिए 40 nanometers. So when your size of nanoparticle becomes comparable to this mean free path, तब वो स्कैटरिंग इवेंट 9 के बराबर हो जाएगा, बहुत कम होगा, और आप कलेक्टिव ऑसिलेशंस देख पाएंगे, उसका इफेक्ट प्रोमिनेंटली दिखेगा. ठीक है. So these are also called dampening of the plasmon oscillations. उसमें ये सब चीजें रोल प्ले करती है. मीन ये जो स्कैटरिंग इवेंट्स हो रहा है, so there is इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग भी होता है कि इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, ये भी एक चांसेस है. तो बहुत लंबा डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना होगा, बड़ा सा क्रिस्टल होगा तो वो भी चांस है, लेकिन उसका इफेक्ट कम होगा. जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वो स्कैटरिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट्स, राइट. So the distance traveled between two scattering events is mean free path, and the time taken between two scattering events is tau, that scattering time. तो आपको जो साइज जब छोटा करते हैं तो ये क्या होता है कि you have these events are curtailed substantially. कि मान लीजिए कि 40 नैनोमीटर का स्कैटरिंग सो मीन फ्री पाथ है, कि इसके मतलब 40 नैनोमीटर होते होते वो दूसरे से टकरा जाएगा, है ना. तो अगर मैं 40 नैनोमीटर का नैनो पार्टिकल बनाता हूँ, 35 नैनोमीटर का बनाता हूँ, तब क्या होगा? तब तो टकराने का चांस कम हो गया ना, बहुत कम हो गया, नहीं होगा. सो दैट्स इलेक्ट्रॉन फोटॉन स्कैटरिंग इवेंट विल बी मिनिमाइज्ड. जो आपके ऑसिलेशंस को बिगाड़ रहा था वो सब चीजें कम हो गई, और आपको ये चीजें बहुत ब्राइट कलर्स के फॉर्म में आपको दिखने लगता है. समझ गए? सो अगेन आप एक चीज जो सेमीकंडक्टर वाला सिस्टम था उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, इन द सेंस वहां पे भी हम रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर था, इलेक्ट्रॉन होल का पेयर का. देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द when we try to restrict the motion of charge carriers in semiconductor system, that is the exciton was the charge carrier, and we try to make the particles smaller than the charge size of the exciton, we saw this kind of unusual properties emerging. Now here also, when we try to make it comparable to somewhat of the order of the 40-50 nanometer, we see substantial change in colors in this metal nanoparticles as well. But the reason here, the here charge carrier is electron, there is no hole obviously, and it is a sea of electron, and the discussion is slightly different. But there is one thing, that it is certain kind of restriction that we have when the size is reduced, when a certain kind of restriction comes on the movement of the charge carriers, and this is the origin of the unusual property that you see. ठीक है. तो ये जो नैनो पार्टिकल्स में अजीब सा एक कलर, अजीब सा प्रॉपर्टी आ गई, अजीब सा कंडक्शन, अजीब सा विजुअल कलर से जो देखने को मिलता है, ये सब कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है कि हम एक रेस्ट्रिक्शन हम डाल रहे हैं. और सो आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग. द मीन फ्री पाथ से काफी रिलेटेड है ये चीज. और ठीक है. सो इसीलिए बल्क मेटल में आपको नहीं दिखता है. मीन फ्री पाथ से काफी के कंपैरिजन में उसका साइज, अगर 1 माइक्रोन के साइज का गोल्ड का क्रिस्टल होगा, उसमें कितनी बार वो टकराता जाएगा, एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करके जाना है, वो तो कई बार टकरा के बेहोश हो जाएगा, मतलब छिटक जाएगा इधर उधर. ठीक है ना, मेटल पॉइंट से. सो आपको नहीं दिखता है प्लाज्मोनिक प्रॉपर्टीज इतनी आसानी से. लेकिन जब आप साइज को छोटा कर देते हैं सफिशिएंटली दैट मीन फ्री पाथ के ऑर्डर का कर देते हैं, समथिंग इवन डबल दी ऑर्डर रहेगा, तब भी वो दिखेगा. 100 नैनोमीटर का होता है, 40 से 80 100 के लगभग भी रहेगा, तब भी वो दिखना शुरू हो जाता है, कलर्स, वेरिएशन इन कलर्स. और जब आप एकदम 40 से नीचे आ जाते हैं तब और भी अच्छे से प्रोमिनेंटली दिखेगा. So this is something that is also there. The point is not written in the slide, so you may write it, और या फिर बाद में रिकॉर्डिंग से लिख लेना. Okay. So it is the role of the mean free path. Now you understand that. बहुत बड़े क्रिस्टल में नहीं आ रहा था 100 नैनोमीटर से नीचे करने पे, क्योंकि वो तब भी
स्लाइटली ट्वाइस, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, नहीं तो क्रिस्टल का साइज 2 माइक्रोन 1 माइक्रोन अगर होता है तो ह्यूज 1000 नैनोमीटर एंड 40 नैनोमीटर, बहुत बड़ा डिफरेंस है. So you will have lot of scattering events will take place and the plasmonic oscillation won't be set up. There will be too many scattering events in a very big crystal of say 1 micron, and the plasmonic oscillation won't be set up, the coherent oscillation, and we won't see the kind of property that we see in a smaller particle. So when the size is reduced as such that it becomes comparable to the mean free path of the metal of the electron, then you get to see this SPR phenomena. सो ओवरऑल हम बहुत सारे मेटल्स को प्लाज्मोनिक नैनो पार्टिकल्स कह देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ओनली सिल्वर, गोल्ड एंड कुछ हद तक कॉपर, ये सब में काफ़ी इंटेंसली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रॉपर्टीज. एंड या सो दे आर नोबल मेटल, आप इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं, स्टेबल है, जल्दी से ऑक्सीडाइज ये सब नहीं होता, रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये सब नहीं होगा एक बार मेटल बन गया तो. और गोल्ड इज पर्टिकुलरली नॉन टॉक्सिक, और सिल्वर में थोड़ा सा इश्यूज है, सिल्वर इज स्लाइटली टॉक्सिक. गोल्ड इज एकदम बहुत अच्छा बायोकम्पैटिबिलिटी है इसका, हमने भी चेक किया, हमारे भी एक we have also done in some of our paper the biocompatibility, and we found that it is absolutely no toxicity was found, and so it is good for biological application. And sometimes so this surface plasma resonance का बहुत बड़ा यूज है, कहाँ पे है कि इमेजिंग में है, कैंसर सेल इमेजिंग में भी यूज हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ऑल्सो थेरेपी में, बिकॉज ये जो SPR जो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ, सिस्टम की एनर्जी तो बढ़ गई है, अब ये वापस डिके भी करेगा, द ऑसिलेशन विल फाइनली डाई डाउन, वो जीरो हो जाएगा जैसे ही लाइट का सोर्स कट गया. तो डिके जब करेगा तो देयर विल बी लॉट ऑफ हीट दैट विल बी जनरेटेड. सो these plasmonic nanoparticles also have this unique property of light to heat conversion. So they have a high light to heat conversion efficiency because of this SPR property, this surface plasma resonance. And that's what so वो हीट जनरेशन को हम यूज कर लेते हैं कैंसर सेल को किल करने के लिए. अगर गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स को हम स्पेसिफिकली लोकलाइज कर लें कैंसर सेल्स के अंदर और तब बाहर से लाइट डालेंगे, देन देयर विल बी डिके, देयर विल बी प्लाज्मोनिक ऑसिलेशन. एक्चुअली वो लाइट जो होता है वो कोहेरेंट लाइट सोर्स होता है, लेजर होता है, लेजर डालते हैं और उसके बाद जहाँ पे कैंसर सेल के अंदर सिर्फ गोल्ड नैनो पार्टिकल गया है, आपने लाइट बाहर से डाली और उसमें सिर्फ SPR ऑसिलेशन हुआ, ऑसिलेशंस डिकेज, एंड देन देयर इज लॉट ऑफ हीट दैट इज जनरेटेड, टेम्परेचर राइजेस टू अराउंड 50-60 डिग्री, किसी किसी में 70-80 डिग्री तक भी देखा गया है. और इतने हाई टेम्परेचर पे सेल्स दे डाई, the cells, the cancerous cell would die and you will get rid of the cancer. So ये मेथड है. इस तरह का और भी है, बैक्टीरियल रेटिनोपैथी और बहुत सारे ट्रीटमेंट में इस तरह की चीज़ें यूज हो रही हैं. बिसाइड दैट देयर आर अदर थिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट. सो so this is the point. So surface, we commonly refer to as surface plug because penetration depth of light, ये पहले मैं बता चुका हूँ, उसी सब पॉइंट्स को कहीं ना कहीं it is of. So now we can classify them of two types. SPR is of two types: propagating SPR, localized SPR. जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया कि स्फेरिकल नैनो पार्टिकल है, वो लोकलाइज्ड SPR का एग्जांपल है, और प्रोपेगेटिंग SPR होता है. सो ये लोकलाइज्ड SPR इज पर्टिकुलरली यू फाउंड इट इन, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ओके, प्रोपेगेटिंग SPR का मतलब जो ये एक ऑसिलेशन है, तो ये एक वेव की तरह चलता हुआ
जाता है और चलता जाता है, वो हो गया प्रोपेगेशन। लोकलाइज्ड का मतलब है कि वहीं पे स्टैंडिंग है, एक स्टैंडिंग वेव की तरह, ये ट्रैवलिंग वेव की तरह बिहेव करेगा। दिस इज लाइक ट्रैवलिंग वेव, traveling wave, and this is the behavior like a standing wave, kind of a standing wave. So we also call it evanescent wave. Also you will find this term when you read literatures, आप पेपर वेपर पढ़ेंगे तो कई जगह लिखा रहेगा like evanescent wave. So that is also a localized thing. So the picture is says it all. So you, this is a in metal films, मेटल थिन फिल्म्स अगर आप है एक शीट जैसा बनाते हैं और उसमें इफ यू irradiate with light, this is the kind of displacement will occur in this manner, positive negative positive negative, so electrons का ही वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ही डिस्प्लेसमेंट, कुछ उसका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। एंड यू विल सी दैट कि यहाँ से चला ऐसे ऑसिलेशन, ऐसे 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 वो ट्रेवल करते हुए उधर जा रहा है, net oscillation. But here in, if it is, you do not see it, is occurring on an extended surface, and you can see a propagation of wave, plasmon wave. Here the plasmon wave is behaves as a standing wave. It is confined to a finite volume such as a spherical nanoparticle like this, and वहीं पे वो अप डाउन कर रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। उसी मेटल नैनोपार्टिकल दो पिक्चर दो अलग फेज के लिए दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो ऑसिलेट कर रहा है उसका फर्स्ट फेज वन फेज टू, जो क्रेस्ट एंड ट्रफ में बिहेवियर है। मेटल नैनो पार्टिकल वही है, कहीं नहीं गया है, वहीं पे अप एंड डाउन चेंज हो रहा है। So the factors that affects SPR. Okay, so we'll continue with this tomorrow. कल बताते हैं फिर इसमें what are the factors that affect the SPR, and कुछ और भी चीजें, एक और चीज बताऊंगा डेंड्राइमर्स के बारे में, जिससे कि दो चीजें मुझे बताऊंगा, उसके बाद ये मैं आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा। एंड वी विल स्टार्ट विथ वो क्या IPR रिलेटेड जो एक पेपर है वो हम बताएंगे। सो और एक एक यूनिट वो वाला है रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला। सो देयर आर थिंग्स लाइक ठीक है, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। एक साथ बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। That's okay, Shivin. Class is over. अरे क्लोज क्यों नहीं हो रहा? स्टॉप। थैंक यू सर।